معزز سامعین ایش ایف ایم، نوید ملک کی طرف سے آپ کی خدمت میں آداب۔ پروگرام خدا کی آواز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزرے کل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ خدا قوم بنی اسرائیل پر اپنے خادم بزرگ یسایہ کے ذریعہ سے ظاہر کر رہا تھا کہ جب تم کہتے ہو کہ ہم نے روزے رکھے تو ہماری سنی کیوں نہیں جاتی، تو پھر خدا یسایہ کو کہتا ہے کہ تو ان سے اونچی آواز میں، بلند آواز سے، جیسے نرسنگے کی اونچی آواز ہوتی ہے ویسی ہی اونچی آواز میں تو ان سے کہہ، ان کا گناہ اور ان کی خطائیں ان پر ظاہر کر کہ ایک طرف تو تم روزہ رکھ رہے ہو، دوسری طرف تمہاری خطائیں انتہا تک ہیں۔ یہ دونوں کس طرح سے اکٹھے مل کر کام کر سکتے ہیں؟ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور پھر خدا ان کو یہ کہتا تھا کہ تم روزہ کے دن اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو، دوسروں سے محنت کرواتے ہو، تم اس لیے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو، اور پھر آگے بتاتا ہے کہ تم ایسا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ میں یسایہ 58 باب اور 3 اور 4 آیت کے مفہوم کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خداوند آج یسایہ کی معرفت مجھ سے اور آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ میں قطعی طور پر یہ نہیں کہتا کہ یہ باتیں آپ کے لیے ہیں اور میرے لیے نہیں ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، ایسا نہیں ہے۔ یہ باتیں جو کہ تم جیسے آپ کے لیے ہیں اس سے شاید بڑھ کر میرے لیے ہوں، اور جیسی میرے لیے ہیں ویسی ہی یہ باتیں آپ کے لیے بھی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں خدا کیا دیکھ رہا تھا قوم بنی اسرائیل میں، کہ خود تو تم اپنی روشوں کو درست نہیں کرتے اور روزہ رکھ کر بڑی خوشی سے ایئر کنڈیشن رومز میں، وہاں پر یہ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن مطلب یہ ہے کہ خود تم اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو، آسائش خانوں میں رہتے ہو، ایئر کنڈیشن رومز، ایئر کنڈیشن گاڑیاں، ایئر کنڈیشن آفیسز، اور تم کہتے ہو روزہ ہے۔ روشیں تمہاری درست نہیں ہے، سب کچھ ایئر کنڈیشن ہے، جو چاہتا ہے تمہارا من وہی تم کرتے ہو۔ لیکن دوسری طرف تم ان لوگوں سے جن کے پاس تمہاری طرح کے وسائل نہیں ہیں، ان کا خون پسینہ ایک کرتے ہو، ان سے محنت کرواتے ہو۔ خدا تو دیکھ رہا تھا نا، اور آج بھی دیکھ رہا ہے۔ خدا کا مقصد یہ تھا کہ تم خود کیوں بیٹھ جاتے ہو کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور دوسروں سے محنت کرواتے ہو، یہ تو میں نے نہیں کہا۔ کیونکہ جب ہم متی 6 باب پڑھتے ہیں 16-17 آیات، تو وہاں پر مسیح خداوند نے کہا کہ اپنا منہ نہ بگاڑو، لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری کا روزہ نہ رکھو، وہ رکھو جو خدا کے حضور مقبول ہو۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ دوسروں پر ظلم کرتے تھے اور خود روزہ رکھ کے بیٹھے ہوتے تھے، اور پھر کہتے تھے ہماری سنی نہیں جاتی۔ اب میرے لیے اور آپ کے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ وہ کون سا ایسا کام ہے
जिसमें हम तो खूब आसाइश से रहते हैं, लेकिन दूसरों से हम जबरन मेहनत लेते हैं। मिसाल के तौर पर, शायद आप किसी कंपनी के मालिक ना हो, शायद कोई बहुत बड़ा बिजनेस ना हो सकता है आप अपने घर में काम कर रहे हैं, या आपकी कोई शॉप है जिस पर और भी लोग काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मैकेनिक हैं, या आपके घर में काम इतना होता है कि आप खुद सारा नहीं कर सकते, तो आपने किसी खातून या किसी मर्द की मदद हासिल की हुई है। वो घर पे आते, काम करते हैं, और आप उनको कुछ सैलरी देते हैं, मुआवजा देते हैं। अब अगर इसी तरह से है, तो फिर देखना यह है कि अगर तुम्हारा रोजा है तो पॉसिबली उनका भी रोजा हो। बदन आपका भी है, बदन उनका भी है। आपको भी प्यास और भूख लगती है, उनको भी लगती है। आप भी पेट के लिए करते हैं, वो भी पेट के लिए करते हैं। लेकिन आप इस रोजे के दौरान काम करने वाली मासी के साथ क्या सलूक करते हैं, या आप अपनी शॉप पर काम करने वाले लोगों के साथ जो मेहनत करते हैं कैसा सलूक करते हैं? यही तो सोचना है ना। देखिए, मेरा रोजा रखना और बाकी सारे काम वहां के वहां हों, ये रियाकारी और हाइपोक्रेसी है। लेकिन रोजा रखकर खुदा की मर्जी के ऐन मुताबिक काम करना, ये वो है जो खुदा बाप के साथ हमारी रिलेशनशिप है। खुदा हमारे मजहबी होने को नहीं पसंद करता, वो हमारे रूहानी होने को देखना चाहता है। तो सोचें कि आज हम किस मकाम पर हैं। और फिर वो कहता है, तुम इसलिए रोजा रखते हो कि शरारत के मुक्के खाओ और झगड़ा रगड़ा करो, कि लोगों को पता हो कि साहब का आज रोजा है, साहब को तंग नहीं करना, उनका पारा चढ़ जाएगा। तो मैं सोचता हूं कि अगर ऐसे ही साहब हैं जिनकी जरा सी बात से नाक माथे पे आ जाती है, या फौरन एकदम झुंझला जाते हैं, या लड़ने मरने के लिए शुरू हो जाते हैं, या बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, तो मैं सोचता हूं कि इस तरह का रोजा क्या वो भूख हड़ताल नहीं जिसकी बात मैं पहले भी कर चुका हूं। यही तो खुदा बनी इस्राइल पर जाहिर कर रहा था कि अरे, तुम दूसरों से मेहनत करवाते हो, खुद खुशी से रहते हो, और जरा सी बात पे तुम्हारा पारा चढ़ जाता है, और जब पारा चढ़ता है बुरी बातें कहते हो, और फिर भी तुम रोजादार अपने आप को समझते। हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत सारे लोग, मैं जनरली बात करता हूं, रोजा रखते हैं। लेकिन जब कभी एक खास महीना आता है जिसमें पाकिस्तानी लोग, ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी लोग जिस महीने में रोजा रखते हैं, आप तजर्बा से देख लें, मेरे साथ आप सर हिला रहे होंगे ये जानकर कि उस महीने में जितने एक्सीडेंट होते हैं, जितनी लड़ाइयां होती हैं और झगड़े होते हैं, शायद बाकी महीनों में औसतन कभी इतने नहीं होते। रोजा खोलने के वक्त रोड पर गाड़ी चलाना मौत को गले लगाने वाली बात है। हर कोई इतनी स्पीड से जा रहा होता है कि अगर आगे गाड़ी हो तो शायद रोड में गाड़ी खड़ी करके
उस दूसरे ड्राइवर को लान तान करने और शायद शीशे के अंदर से मुक्के मारने के बाद फिर गाड़ी चलाएं और कहें मेरा रोजाना होता ना तो फिर तेनों दसदा। अबे मेरा रोजाना होता ना तो मैं तुम्हें बताता कि तुम कौन हो और मैं कौन होता हूं। जी इसी तरह होता है। और मैं सोचता हूं कि इस तरह की रियाकारी के रोजे खुदा कतई तौर पर कबूल नहीं करता। आप मुस्कुरा रहे हैं ये बात सुनकर, लेकिन मैं सोचता हूं इसके पीछे मेरे लिए और आपके लिए एक सबक है कि जब हम गैर कौमों को इस तरह से बड़बड़ाते हुए देखते हैं तो अपने आप को देखें कि कहीं हम भी इसी तरह से तो नहीं करते। और अगर इस तरह से हो जाता है तो खुदा के हुजूर हम मुआफी के तलबगार हों, उससे कहें खुदावंद तू मुझे मुआफ कर, मुझे मुआफ कर और मुझे इस लायक कर कि मैं वो कर पाऊं जो तुझे पसंद है। मैं मजलूमों पर जुल्म ना करूं, वो लोग जो लाचार हैं उन पर ज्यादती ना करूं, मसाकीन की मदद कर पाऊं, बेवाओं और यतामा की मदद कर पाऊं, दुखी और गमजदा लोगों के जख्मों पर नमक रख पाऊं। मैं किसी के लिए तकलीफ का सबब ना हूं। दौराने रोजा इवन मेरी जिंदगी का मामूल यह बन जाए कि मैं अपने मुंह से बुरी बातें न कहूं, वही कहूं जो दूसरों की बेहतरी और बहबूद का सबब हो। और जब हम ऐसा करेंगे खुदावंद का नाम मेरे और आपके वसीला से जलाल पाएगा, उसकी शान बढ़ेगी और मेरा और आपका ईमान खुदावंद में बढ़ता चला जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, आए हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि रोजा के दौरान दूसरों से मोहब्बत करें, झगड़ा रगड़ा खबरदार बंद हमारी आम जिंदगी का भी मामूल हो जाए और कोई ऐसी शरारत ना की जाए जो खुदा के हुजूर हमारे लिए मुसीबत बन जाए। आमीन। खुदावंद इस कलाम के मुताबिक मुझे और आप सबों को रोज़े रखने की और रोज़े की हालत में अपनी मर्ज़ी को पूरा करने की तौफीक बख्शे। आमीन। कीप वॉचिंग ब्लेसिंग टीवी ऑफिशियल।